ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಧಾಮ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯ ದಿಗ್ದರ್ಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅನೇಕರು ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಎರಡು ಅವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರ ಪರಿಚಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಮಂಥಪಾಶಧರಂ ದಿವ್ಯಾರ್ಭಕಾಕೃತಿಂ ಶಿಖಾಬಂಧತ್ರಯೋಪೇತಂ ಭೈಷ್ಮೀಮಧ್ವಕರಾರ್ಚಿತಂ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಂ ಅಜಡಂ ವಿಮಲಂ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲಂ ಭಜೆ ತಾಪತ್ರಯಾಪಹಂ ಆಪಾದಮೌಳಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠಮಧಿರೂಢಾನಾಂ ಅದಮಾರು ಮಠಾಧೀಶಾನಾಂ ಈಶಪ್ರೇತಿತ ಸ್ವಾಮಿಚರಣಾನಾಂ ಚರಣಾರವಿಂದಯೋಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಿಪಾತಂ ವಿಧಾಯ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣಪಂಥಂ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ನಿರಂತರಂ ಅಕ್ಷರಪುರುಷೋತ್ತಮತತ್ವಂ ಜಗತಿ ಪ್ರಸಾರಯಂತಹ ವಿರಾಜಂತೆ ತಮಾಂ ಭದ್ರೇಶ ಸ್ವಾಮಿಚರಣಾಃ ತೇಷಾಮಪಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ಯಃ ವಂದನಾನಿ ಸಮರ್ಪ್ಯ ಅಹಂ ಕಿಂಚಿದೇವ ಉದಂಚಯಾಮಿ. ಕರ್ಮಂದಿವೃಂದ ಆರಾಧಿತ ಕಮನೀಯ ಚರಣಸ್ಯ ಭಗವತಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಜಗದ್ಗುರುಣಾಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ಚ ದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಾಃ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಚರಣಾಃ ಗುರ್ಜರ ಪ್ರದೇಶಾತ್. ಯಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರದೇಶಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಃ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಆಜಗಾಮ ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರದೇಶೇ ಎವ ವಿರಾಜಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಚರಣಾಃ. ತೇಷಾಂ ಇದಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮಸ್ತಿ. ಪ್ರಾಯಃ ಭಾರತದೇಶೇ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಂ ಯೇ ಧರಂತಿ ಪ್ರಾಯಃ ತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನ ಪಠಂತಿ ಅಪವಾದಸ್ಥಾನೀಯಾಃ ಕೇಚನ ಭವಂತಿ. ನ್ಯಾಯಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ ವೇದಾಂತಂಚ ಅಧೀತ್ಯ ಸನ್ಯಾಸದೀಕ್ಷಾ ಸ್ವೀಕರ್ತವ್ಯ. ಪರಂತು ಬಹವಃ ತಥಾ ನ ಕುರ್ವಂತಿ. ಯದಿ ಭವಂತಃ ಹರಿದ್ವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ತತ್ರ ಬಹವಃ ಸನ್ಯಾಸಿನಃ ಭವಂತಿ, ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಧಾರಿಣಃ ಭವಂತಿ, ಪರಂತು ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನಂ ಬಹೂನಾಂ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಪ್ರಚಂ. ಪರಂತು ಏತೆ ಮಹಾನುಭಾವಾಃ ಆಬಾಲ್ಯಾತ್ ವಿರಕ್ತಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರಮಧೀಯಾನಾಃ ವಿಶಿಷ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರುನಗರಸ್ಥೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠೆ ಅನೇಕೇಷಾಂ ವಿದುಷಾಂ ಸಮವಾಯೇ ಸನ್ನಿಧಾನೆ ತೇ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉದ್ಗ್ರಂಥಂ ಅಧೀತವಂತಃ ಸಂತಿ. ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿವಾದಗ್ರಂಥಂ, ಶಕ್ತಿವಾದಗ್ರಂಥಂ, ಸಾಮಾನ್ಯರುಕ್ತ್ಯಾದಿಗ್ರಂಥಂಚ ಏತೆ ಅಧೀತವಂತಃ. ನ್ಯಾಯೇ ವ್ಯಾಕರಣೇ ಚ ವೈದುಷ್ಯಂ ಸಂಪಾದಿತವಂತಃ. ನ ಕೇವಲಂ ನ್ಯಾಯೇ ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಾನ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಅಧೀತ್ಯ ಆಂಗ್ಲಭಾಷಾಯಾಮಪಿ ಪ್ರೌಢಿಮಾಂ ಸಂಪಾದ್ಯ ಸಮಗ್ರೇಪಿ ಭಾರತದೇಶೇ ಪಾಠಪ್ರವಚನಂ ಕುರ್ವಂತಹ ವಿರಾಜಂತೆ ತಮಾಂ. ತೇಷಾಂ ಆಗಮನೇನ ಪರಮಪೂಜ್ಯಾಃ ಗುರುಚರಣಾಃ ಈಶಪ್ರೀತಿತ ಸ್ವಾಮಿಚರಣಾಃ ಅತೀವ ಹೃಷ್ಟಾಃ. ते अपि ईशप्रीतित श्रीमच्चरणानां दर्शनेन कृष्णस्य दर्शनेन अतीव सन्तुष्टाः सन्ति. तेषां हार्दं स्वागतं. तथा तेषां छात्राः शिष्याः अनेके अत्र समुपस्थिताः स्वामिचरणः, तेषामपि स्वागतम्. उपस्थितानां सर्वेषामपि स्वागतम् अभिधाय वाग्व्यापारात् उपरमामि. धन्यवादाः. आचार्येभ्यः अपि हार्दं भूयांसि नमांसि कृतज्ञताश्च. तदिदानीं श्रीमान् भद्रेशदासचरणमहोदयः अस्मान्नुद्दिश्य किञ्चित् संवदति. तदनन्तरं पर्याय श्रीपादाः अपि किञ्चित् संवदेत् अस्मान् इति सम्प्रार्थ्य. यतोहि शास्त्रेषु भगवच्चिन्तनं सर्वदा नित्यं कर्तव्यम् इति नियमः. तत्र इदानीं पूर्वं गुरूणां सविधे सर्वे स्थित्वा वाग्व्यापारं समजनि तत्र च तेषां
मतस्य परिचयमपि कृतमस्ति। तेन च अस्माकम् आचार्यस्य च आचार्यमध्वस्य च सम्बन्धः द्वारकाधीशतः अत्र कृष्ण उडुप्यधीशः स एव अत्र आगतः इति कृत्वा कृष्णस्य सविधे कृष्णस्य पुरतः स्वकृतभाष्यग्रन्थानां समर्पणम् अत्र समभवत्। तेन च वयमपि सर्वे कृतार्थाः इति पुनः आशास्य श्रीमच्चरणानां कृते सम्भाषणार्थम् अवकाशः देयः इति प्रार्थये। ॐ स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ मान्याः श्री स्वामीचरणाः, सर्वे श्रोतारः, सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अतीव आनन्दस्य विषयः यद् अस्मिन् पवित्रे तीर्थे भगवतः श्रीकृष्णस्य दर्शनं जातं। न केवलं दर्शनं जातं किन्तु श्रीचरणैः सह भगवतां दर्शनं जातं। यैः इदानीं परमात्मा आराध्यते तैः सह दर्शनं जातम्। इतोपि अधिकं वदामि चेत् अद्य अस्माभिः प्रणीतस्य भाष्यग्रन्थानां समर्पणं भगवतः समीपे जातम् इति आनन्दस्य अवसरः। पूज्य स्वामीचरणैः सह भव्यः दिव्यः वार्तालापोऽपि जातः। किमर्थं भव्यः? विषयस्य भव्यत्वात्। किमर्थं दिव्यः? विषयस्य दिव्यत्वात्। अतः अतीव अद्य आनन्दम् अनुभवामि। गुरुः इत्यस्य महत्त्वम् अस्माकं भारतीयवैदिकसंस्कृतौ अतीव वर्तते। गुरुचरणाः तत्र उपनिषत्सु पुनः पुनः गुरोः शरणागति स्वीकर्तव्या इत्युक्तमस्ति। यद्यपि उपासनीयः परमात्मा भवति, किन्तु यथार्थतया उपासनार्थं गुरोः शरणम् आवश्यकम्। गुरुः ज्ञानं यच्छति। मुण्डकोपनिषदि उक्तं तद्विज्ञानार्थं स गुरुम् एवाभिगच्छेत्। समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्म निष्ठम्। गुरुमेवाभिगच्छेत्। एवकारः तत्र वर्तते। भिन्नक्रमेण एवकारस्य योजना क्रियते। गुरुमेवाभिगच्छेत्। यदि ब्रह्मविद्यायाः ज्ञानम् आवश्यकं तदा गुरोः एव समीपे गन्तव्यं, नान्यत्र। अन्यच्च गुरुमेवाभिगच्छेत्। गुरोः शरणं गच्छेदेव। शरणागतिं विना ब्रह्मविद्यायाः प्राप्तिः नैव भविष्यति। गुरोः शरणागतिः। श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमिति यत् पदं वर्तते तत्र गुरोः लक्षणानि उक्तानि। सः गुरुः कीदृशः भवेत्? श्रोत्रियः, यस्य जीवने शास्त्राणां रहस्यम् आत्मसात् कृतं वर्तते, तादृशानां गुरूणां शरणे गन्तव्यम् इति शास्त्राणाम् आदेशः। ते परेब्रह्मणि निष्ठां धृतवन्तः। परस्य ब्रह्मणः भक्तिं कुर्वन्ति। तादृशस्य गुरोः शरणं गृहीतव्यम्
इति शास्त्रे उक्तम्। तदनन्तरं शिष्यस्य कः धर्मः, यथा गुरोः लक्षणानि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इत्यादिकं, तदा शिष्यस्यापि धर्माः भवन्ति। तत्रैव शमान्विताय प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय तादृशाय शिष्याय गुरुः ज्ञानं यच्छति। प्रशान्तचित्ताय यदा वयं गुरोः समीपं गच्छामः, तेषाम् उपदेशं शृण्मः, तदा शान्तेन चित्तेन भाव्यं प्रशान्तचित्ताय। एवं जीवने संयमोऽपि आवश्यकः। शमान्विताय गीतायामप्युक्तं 4थे अध्याये 34तमे श्लोके तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गुरोः समीपं यदा गच्छामः तदा प्रथमं प्रणामः कर्तव्यात्। तद्विद्धि प्रणिपातेन। प्रणामः इत्यस्य अर्थः विनम्रता आवश्यकी। नम्रभावेन गुरोः समीपं गन्तव्यम् अस्माभिः। गुरोः विचाराः स्वीकर्तव्याः, स्वीयविचाराः त्यक्तव्याः इति तद्विद्धि प्रणिपातेन इत्यस्य अर्थः। द्वितीयः शब्दः परिप्रश्नेन। गुरुं प्रति प्रश्नाः अपि प्रष्टव्याः। अस्माकं वैदिकसंस्कृतेः उपरि एकः आक्षेपः भवति आधुनिकानां, येषां सम्पूर्णतया ज्ञानं न भवति भारतीयवैदिकसंस्कृतेः। ते आक्षिपन्ति यदत्र प्रश्नस्य अवकाशः एव न दीयते। यथा गुरुः वदति तथैव शिष्यः स्वीकरोति। प्रश्नः नैव कर्तव्यः, बुद्धेः प्रयोगः नैव कर्तव्यः इति भारतीया पद्धतिः इति केषाञ्चन जनानां भ्रान्तिः वर्तते। तथा नास्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायां तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, हिंदी वा भाषां वदेम वा संस्कृते वा? हिंदी में बोलना। हाँ, मया विस्मृतम, हम भूल गए, हमें हिंदी में बोलना था। भगवान श्री कृष्ण ने 4th अध्याय में शिष्य के लक्षण सुनाए हैं। यदि हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना हो तद्विद्धि, तो प्रणिपात करो। गुरु के पास जाकर गुरु को नमन करो। विद्या जहाँ से भी प्राप्त करनी हो, ऐसे गुरु को नमन करना चाहिए। नमन का अर्थ है अपने विचार को छोड़ना चाहिए, तभी तो हम अध्ययन कर सकते हैं। जब हमें गुरु पढ़ाते हैं विद्या, यदि हम हमारे ही विचार को अपने मन में रखें तो नूतन विचार का ग्रहण कैसे होगा। प्रणिपातेन इत्यस्य अर्थः कि गुरु के चरण में अपने विचारों को छोड़ देना। विनम्रता से ज्ञान का आरंभ होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में गुरु करने पर शिष्य की बुद्धि का कोई उपयोग ही नहीं होता है। बस गुरु के वचन में श्रद्धा रखो, गुरु को तो प्रश्न करना ही नहीं चाहिए, ऐसी भारतीय संस्कृति है, यह अनुकूल नहीं, ऐसे कुछ आधुनिक लोग बताते हैं। लेकिन ये गलत बात है। हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति में वैदिक काल से प्रश्नोत्तरी हो रही है, वैदिक काल से विमर्श हो रहा है। देखिए उपनिषद में संवादों को देखिए। पति और पत्नी के बीच में संवाद होता है, मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के बीच में। जब याज्ञवल्क्य वानप्रस्थ लेने वाले थे, उद्यास्यन्वा अरे अहम अस्मात् स्थानादस्मि, उनको जब विचार हुआ कि हम वानप्रस्थ का स्वीकार करें, तब मैत्रेयी उनकी पत्नी, उनके साथ जो वार्तालाप होता है ब्रह्म ज्ञान का, तो विमर्श है, एक चर्चा भी है, प्रश्न भी होते हैं। और याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को कहते हैं, नवारे पत्युः कामाय पतिप्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय प्रतिप्रियो भवति। अद्भुत संवाद भारत देश में है। आप पिता पुत्र के संवाद सुनेंगे। छांदोग्य में जो 6ठा अध्याय है, जहाँ सद्विद्या का प्रतिपादन हुआ, तो पिता पुत्र को कहते हैं तत्वमसि। ऐसे ज्ञान तो पिता और पुत्र के बीच में संवाद होते हैं। आप देखेंगे प्रश्नोपनिषद में
6 मित्र एकत्रित हुए हैं, 6 मित्र। और कैसे थे 6 मित्र? फ्रेंड सर्कल कहते हैं हम, फ्रेंड्स। ब्रह्मपराहा, ब्रह्मनिष्ठाहा, परम ब्रह्म अन्वेषमाणाहा। देखिए मित्र भी कैसे होने चाहिए। हमारे वैदिक काल के संवाद जब देखेंगे उसमें प्रश्नोत्तरी है। प्रत्येक शिष्य ने प्रश्नोपनिषद में प्रश्न पूछे हैं। तो भारतीय संस्कृति प्रश्न को अवकाश देती है। भारतीय संस्कृति विचार और विमर्श को अवकाश देती है। हम जब श्वेताश्वतर उपनिषद देखते हैं तो उसमें भी एक चर्चा हो रही है आरंभ में ही। कुतस्म जाता वयम केन जीवामः क्वच संप्रतिष्ठाः, ऐसे एक विचार चला, बहुत लोग एकत्रित हैं। तो उसमें कुछ कोई कहते हैं कि स्वभावः प्रकृति ही पुरुषः यदृच्छा, ऐसे विकल्प, अलग अलग विकल्प। और अंत में शब्द ते चिंत्याः, उस पर विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए। तो हमारी भारतीय संस्कृति परिप्रश्न की बात करती है। श्रीमद् भगवद गीता तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, केवल प्रश्न नहीं, यहाँ परिप्रश्न कहा। परिप्रश्न, परिप्रश्न का मतलब है जो हमारे जीवन के लिए प्रश्न होते हैं वे परिप्रश्न होते हैं। केवल पूछने के लिए नहीं, केवल जिज्ञासा से भी नहीं, मुमुक्षुषा, मुक्ति की इच्छा से जो प्रश्न किए जाते हैं वे परिप्रश्न होते हैं। तो ये 2 साधन शिष्य के हुए। तीसरा साधन है सेवया, गुरु की सेवा करो। सेवा अर्थात सेवन करो। गुरु की भी स्मृति करनी चाहिए। जिससे हम विद्या प्राप्त करते हैं उसको याद करना चाहिए। आज हम संसार में भी देखते हैं कि कोई खेलते हैं, समझो कोई क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो उनका एक आदर्श होता है, आइडियल होता है, उसको वो देखते रहते हैं। वो सेवा है, अनुसंधान, सेवनम, सतत अनुसंधान करना। गीता में ही लिखा है यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। गुरु हमारे आदर्श होते हैं, हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। उनको देखकर हम जीवन जीते हैं। तो गुरु के भी लक्षण शास्त्र में कहें, शिष्य के भी लक्षण शास्त्र में कहें। अब उससे आगे जाता है श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम मंत्र, यस्य देवे पराभक्ति ही यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। गुरु में देव बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि वे अपने विचारों में भगवान को धारण करते हैं, अपने जीवन में भगवान को धारण करते हैं, सतत भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसलिए गुरु में भी देव बुद्धि करनी चाहिए। तो फल क्या मिलता है? जितने अर्थ शास्त्र में जितना लिखा है पूरा रहस्य हमें आत्मसात होता है। आज आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे हमें गुरु प्राप्त हुए। आज मध्वाचार्य के रूप में उनके जो अष्टमठ है उनके गुरु है, जो अपने मत का प्रचार करते हैं और शिष्य को जीवन में सद्बोध देते हैं। भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए वो सिखाते रहते हैं। ऐसे गुरु के शरण में हम लोग हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे भी गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज आज पूरी जो हमारी BAPS स्वामीनारायण संस्था है उनके गुरुदेव हैं। लाखों लोगों को आध्यात्मिक एक उपदेश देकर मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उनका जीवन पवित्र है। उनके साथ साथ हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज, जिन्होंने अक्षरधाम बनाया गांधीनगर गुजरात में, उसके बाद दिल्ली अक्षरधाम बनाया, अभी तीसरा अक्षरधाम स्वामी जी बन रहा है जो अमेरिका में है। और बहुत बड़ी भूमि पर अद्भुत रीति से हमारी जो वैदिक सनातन धर्म परंपरा है इसके जितनी भी विशेषताएं हैं वो संपूर्ण विशेषताओं के साथ यह अक्षरधाम अमेरिका में भी बन रहा है। तो हमारे गुरुजी प्रमुख स्वामी जी महाराज, उन्होंने 1000 से ज़्यादा मंदिर बनाए। उन्होंने 1000 से ज़्यादा युवाओं को दीक्षा दी, जैसे जिसमें से हम 4 यहाँ हैं। ऐसे 1000 से ज़्यादा दीक्षित युवा है और वे सब
वैदिक सनातन धर्म की रक्षा में लगे हैं। प्रमुख स्वामी जी ने शास्त्र प्रणयन की भी प्रेरणा दी थी और ऐसे शास्त्र, खासकर परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित जो अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन है, उस अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के प्रतिपादक ऐसे शास्त्र प्रमुख स्वामी जी महाराज ने करवाए और ऐसे शास्त्रों को लेकर हम यहाँ आए थे। परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन निरूपक जो प्रस्थान त्रयी के भाष्य ग्रंथ आज हम यहाँ लेकर आए, भगवान श्री कृष्ण के समीप हमने समर्पण किया। पूज्य श्री चरणाहा अपि तत्र आसन, पूज्य स्वामी जी भी वहाँ थे। उनकी उपस्थिति में एक ऐतिहासिक क्षण हम कह सकते हैं, एक मौलिक विशिष्ट दर्शन, जैसे भगवत शंकराचार्य प्रतिपादित दर्शन को अद्वैत दर्शन कहते हैं, रामानुजाचार्य प्रतिपादित दर्शन को विशिष्टाद्वैत दर्शन कहते हैं, श्री मध्वाचार्य जी प्रणीत दर्शन को द्वैत दर्शन कहते हैं, निम्बार्काचार्य प्रणिपादित दर्शन को द्वैताद्वैत दर्शन कहते हैं। ऐसे तत्तद आचार्य प्रणीत दर्शन है। ऐसे ही परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित एक अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन मौलिक विशिष्ट वैदिक सनातन दर्शन है। इसके प्रतिपादक भाष्य ग्रंथों को आज भगवान के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में अर्पित किया। इसलिए ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए भी है और ऐतिहासिक क्षण आपके लिए भी है, जहाँ दो संप्रदाय एक साथ मिलकर हमारे वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए, उसकी पुष्टि के लिए और संवर्धन के लिए कार्य करते हैं। तो आज मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको भगवान बहुत शांति दे, हमारा जीवन धर्ममय बने, भगवान में हमारी श्रद्धा बढ़े और शास्त्रों में हमारी श्रद्धा बढ़े, हमारे गुरुदेव में हमारी श्रद्धा बढ़े। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः। ಜೀವನದ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಷ್ಯನೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನೇ ಅವನು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕುವಂಥದ್ದು. ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕು ಆ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಥರದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು, ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಬದುಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಮಚ್ಚರಣರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಿಸಿ, ಅಂತೆಯೇ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ವ್ಯಾಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೇ ಹೃದಯಾಯ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನೀನದತ್ಪದ್ಮಭವ ಮೃದಂಗಂ ಜಗೌ ಹನುಮಾನ್ ಜಗತಾಮದೀಶಂ ಅದರ್ಶಯತ್ತಾಲಗತೀಃ ಕಪರ್ದೀನನರ್ತಗೋಪಾಲಕಬಾಲಮೌಲಿಃ ಸ್ವಾಂತಸ್ಥಾನಂತಶಯ್ಯಾಯ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನರಸಾರ್ಣಸೇ ಉತ್ತುಂಗವಾಕ್ತರಂಗಾಯ ಮಧ್ವದುಗ್ಧಾಬ್ಧಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. 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 श्रीकृष्णार्पणमस्तु. भागवत में एक संवाद आएगा कृष्ण जी और उद्धव का। उसमें
एक श्लोक ऐसा है, त्वयोपभुक्तसृगन्धवासो अलङ्कार चर्चिताः उच्छिष्टभोजिनोदासाः तव मायां जयेमहि। उसका जो अर्थ है वो ऐसा है, कौन भगवान को जान सकता है, ऐसा प्रश्न आया तो उसका उत्तर ये है, किसके जीवन में उसका जो भी काम हो अथवा भोग हो, सभी के साथ कृष्ण का चिंतन साथ में रहेगा, वो तव मायाम जयेमहि। उसका वो जो वस्त्र पहनेगा उस समय ये चिंतन होना चाहिए, भगवान ने दिया है इसको, हमारा ऊपर भगवान का आशीर्वाद का रूप से ये मिला है, हम ऐसा सोच के उसको पहनना है। और जो भी माला धारण हम करेगा उस समय में भी ऐसा होना चाहिए, मन में चिंतन ऐसा रहना है, अंदर में भगवान का सन्निधान है, उससे दिया हुआ ये शरीर है, उसको रक्षण करना है। इसीलिए सभी जो अन्नपान वो सब रहेगा उसका रक्षण के लिए, और वो माला जो है वो अलंकार, भगवान का जो मंदिर हम कैसे अलंकार करेंगे, जैसा ये शरीर भी एक भगवान का मंदिर है, हम उस पर रहते हैं भगवान का कृपा से, इसलिए उसको भी अलंकार करना है, कितना चाहिए उतना। वो जो माला है वो भगवान से दिया हुआ है, ऐसा सोचकर उसको समर्पण करके, चिंतन करके, हम समर्पण बोले तो वही है, चिंतन रहना है, ये सब भगवान से दिया हुआ है। ऐसा हम लोग जो उपयोग करेगा, जो सुगंध द्रव्यादिकम, वो भी उससे दिया हुआ है, ऐसा चिंतन रहना है। भोजन, ऐसा हम चिंतन करके जीवन बिताए तो तब सब जगह पर भगवान को देखने का दृष्टि मिलेगा। बाद में भगवान का कृपा से शास्त्राध्ययन का मार्ग भी मिलेगा। ऐसा प्रवृत्ति किसमें रहेगा, वो एक ना एक दिन उसको भगवान मिलेगा गुरु के द्वारा। जो ऐसा जैसा बद्रीशदास स्वामी जी बोला अभी, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ऐसा मन कब आएगा, जिसको भगवान को जानना है, ऐसा एक उत्कट इच्छा किसको रहेगा, वही ढूंढता जाएगा, एक गुरु मिलेगा। प्रश्न करना चाहिए, कैसा बोले तो अभी जो मीडिया का लोग रहेगा वो भी प्रश्न करेगा, भगवान को जानने के लिए प्रश्न करेगा क्या? नहीं, वो उसका जीवन के लिए प्रश्न कर रहा है। ऐसा नहीं, सात्विक इच्छा के साथ प्रश्न होना है, तब उत्तर मिलेगा। एक ना एक दिन अच्छा उत्तर मिलेगा। भगवान का गुण अनंत है, इसलिए एक दिन कितना मिलेगा, उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। फिर से उसका एनालिसिस करना है। इसके लिए हम लोग सब अध्ययन करता रहना है। अध्ययन से मिलता जाएगा, जो संपत्ति है, विद्या संपत्ति है, वो मिलेगा। इसी तरह इसी मार्ग में जो हमारा साथ बैठे हुआ है स्वामी जी, वो उसी मार्ग में है और सब जगह पर जाके
स्वामी नारायण का जो पथ था, मार्ग था, उस मार्ग को आदर्श रूप से लेके वो भी भारतवर्ष में और अदर जगह पे, तो विदेश में भी जाके हमारा जो ग्रंथ का जो गुरुत्व है और उसमें जो विज्ञान है वो सब लोगों को देने के लिए भगवान का आज्ञा ऐसा रूप से वो लेके सब जगह पर घूम के जो भी भक्त है उसको जो वेद में क्या है उसका विस्तरण रूप से प्रवचन और खुद उसको पालने का साथ वो कर रहा है। उसका जीवन ही ऐसा पाठ प्रवचन में वो रखे। स्वामी नारायण जी का जो पथ है उसको वो भी जीवन में लिया है, स्वीकार करके उस मार्ग में बहुत दूर अभी आया है। ऐसा भक्त लोगों को जो भी वेद में और उपनिषद में क्या क्या है वो सबको बता के उसको भी अच्छा पथ में डालने का प्रयास ले रहे हैं। साथ वो भी मोक्ष का मार्ग में प्रयास करके जा रहा है। तो अभी आज का दिन शुभ अवसर है। इधर कृष्ण का सामने जो भी वो जीवन में पढ़ के और जो भी ज्ञान संपादन किया उसको नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करने का एक मेथड है वो लिखने का। वो लिख के एक बात है, सहस्रम वदा एकम माँ लिखाए थे। बहुत कुछ बोल सकते हैं मगर लिखने में बहुत जागृत रहना है, क्योंकि एक कुछ फॉल्ट हुआ तो वो इतिहास में रहेगा। इसलिए लिखने को बहुत शक्ति चाहिए। तो उसका अध्ययन का पूरा सार वो लिख के आज कृष्ण के सामने समर्पण करने के लिए दिल्ली से आया है। तो कृष्ण के ऊपर उसका भक्ति कितना है आप समझ सकते हैं। केवल पुस्तक को समर्पण करने के लिए इधर तक आके पुस्तक समर्पण करके हमारा भी एक भाग्य समझता हूँ। आप लोगों को भी ऐसा मौका मिला जो उसका शब्द सुनने का। तो ये सब एक भक्त ग्रुप को वो इंस्पायर करेगा, तो हम भी ऐसा करना है। इसीलिए ये सब बहुत अच्छा है। एक कन्नड़ में इसको मैली गल्लू कहते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट एक अवसर है ये। हम उडुपी के सब लोग अभी सुना, आपका जो प्रवचन भी सुना, तो हम भी ऐसा यात्रा एक बहुत अच्छा परंपरा है हमारा देश में। किसी और जगह पर ऐसा परंपरा नहीं है, ऐसा संस्कृति नहीं है। यात्रा करके हम पूरा भारत घूम के उधर का जो स्पेशल विषय है, उधर का जो कल्चर है, उधर का जो अच्छा विषय है, हमको वो अध्ययन में पूरक होगा, उसको लेके हम यात्रा करके फिर घर में आके वो सब अच्छा विचारों को इकट्ठा करके हम जीवन में अडॉप्ट करेंगे। ऐसा एक संस्कार हमारा भारत में है। तो इसमें बांधव्य बढ़ेगा और उधर कभी भी हम दूसरे जगह पर जाके बात किया तो हमारा जो नॉलेज जो है वो भी बढ़ेगा, विद्या भी अधिक होगा। ऐसा एक अच्छा अवसर है कृष्ण के सामने वो पूरा जो भी लिखा हुआ है भाष्यादिकम वो समर्पण किया और उसका मन बहुत विशाल है। तो
हमारा साथ भी, हमारा विद्यार्थी जो थे उसके साथ भी बातचीत करके देश में कैसे रक्षण करना है सनातन धर्म, उसके विचार में भी बात किया। सो फ्यूचर में फिर ऐसा मौका कृष्ण जी देता रहना चाहिए। साधन करने का जो मार्ग में कोई भी है तो उसको भी एक इच्छा, हम भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा इच्छा होना चाहिए, भगवान का कृपा भी होना चाहिए। इसीलिए ऐसा मौका फिर आना चाहिए, ऐसा प्रार्थना करके भगवान से कुछ 2-3 ಶಬ್ದ ಕನ್ನಡ में भी बोलूँगा। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದೂರದ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಕ್ಷರಧಾಮ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಭಾವವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವವರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವರಿಂದ ಸಾಧನೆ ಆಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಪುರಾಣದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇದನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಸುಕತೆಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸಿ 2 ಮಾತನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಬದ್ರೀಶ ದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಕೇತ ರೂಪವಾಗಿ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. हरे नमः। कृष्ण के ऊपर डाला हुआ माला है, मूल डेटी पर। 800 ವರುಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ 8 ಯತಿಗಳ ಪರಂಪರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 100 ಸಾವಿರಾರು ದೇಶಗಳಿಂದ ಇದರ ಕುರಿತಾದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬಂದು ಆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೂ, ಅಂತೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಭದ್ರೇಶದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪರಿಯೇ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೂ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಅಂತೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಆಲಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ 4:00 ನಾವು ಈ ಚಿಂತನೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವರಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ 6ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂದಿರದ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ A.V. ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಯುವಕರು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ದಾರಿ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ 4:00 ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಶ್ರೀಪಾದರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮಹತ್ವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಆಗಲೇ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೆ ತೇಂಘ್ರಿಯುಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಇವತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಪಣೆಗೊಂಡಂತಹ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಗಳ ಭಾಷ್ಯಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ಈಗ ಶ್ರೀಪಾದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಪಾದರೇ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಅನೇಕ ಇದರ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಜೊತೆಗೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು, ಶ್ರೀಪಾದರು ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಅದರ ತತ್ವದ ಅನೇಕ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಪಂಚ ತತ್ವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚಭೇದದ ಚಿಂತನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವುದರ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಆಗಲೇ ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತುಳಸಿ ದಳವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ದವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.